સરીગામ જીઆઈડીસીની નજીક આવેલી ગુડવે કેમિકલ કંપની વિવાદમાં આવી છે। કરોડોનું કામ કરાવ્યા બાદ પેમેન્ટ ન ચૂકવી માલિકે ઠગાઈ કરી હોવાના આક્ષેપ ભોગ બનનારા લોકોએ કર્યા છે। વલસાડ જિલ્લાના સરીગામ જીઆઈડીસી નજીકમાં આવેલ ગુડવે કેમિકલ કંપનીનું નિર્માણ થોડા સમય પહેલા પૂર્ણ થયું છે। આ કંપનીના નિર્માણ વખતે અલગ અલગ લોકોને કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કંપનીમાં ઉપયોગી કન્સ્ટ્રક્શન કામગીરી કરનાર સાથે પાઇપલાઇન, કલર કામ, લોખંડ અને અન્ય સામાન પૂરો પાડનાર લોકો પાસેથી પહેલા સામાન લઈ લેવાયો અને બાદમાં પેમેન્ટ ન આપી ઠગાઈ કરવામાં આવી છે। સામાન પૂરો પાડનાર લોકોએ કંપનીના માલિકને અનેક વખત રજૂઆત કરી છે, પરંતુ લોકોને વળતર મળ્યું નથી। सर, मेरा नाम मंदार पाटिल है। हमने यहाँ पे HVC और क्लीन रूम पार्टीशन का काम किया था। 2 साल से हम पेमेंट के लिए इन लोगों से फॉलोअप ले रहे हैं। मेरा 78 लाख रुपए पैसा इन लोगों पे बाकी है। बहुत दिनों से हम फॉलोअप ले रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। मेल पे हम मेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इन लोगों से। मेरा कंपनी का नाम है पर्टिकुलर है वापी में, और गुडवे कंपनी में हमारा पैसा बाकी है। गुडवे केमिकल वो कंपनी में हमारा पैसा बाकी है। हम लोग पिछले 2 साल से लिटरली मैंने बैंक से सीसी उठाया था। सीसी बैंक का लोन में अभी पेड कर रहा हूँ, पर ये लोग पेमेंट देने का नाम नहीं ले रहे। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए सर। गवर्नमेंट से आपकी क्या मांग है? गवर्नमेंट से इतनी चाहते आप ये मामले में इंटरफेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। काफ़ी लोग हैं सर, 15-20 लोग हैं, 20-22 लोग हैं जो ये सब मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। प्लीज़ आप सबको सपोर्ट कीजिए। मैं आ गुडवे केमिकल નું કામ 2023માં શરૂ કરેલું હતું અને 2023થી આ બિલ્ડિંગો જે બી છે એ બિલ્ડિંગો બિલ્ડિંગ નંબર 3, બિલ્ડિંગ નંબર 4, બિલ્ડિંગ નંબર 1, ETP STP રોડ બધું જ કામ મેં કર્યું છે। શરૂઆતમાં ડૉક્ટર સુનિલ દેસાઈનો વ્યવહાર બહુ સારો હતો અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ પેમેન્ટ બિલ પ્રમાણે આપતા હતા। બિલ પ્રમાણે તો ના કહેવાય, પણ હેડોક પેમેન્ટ આપતા રહેતા હતા। પછી એને કંઈક ક્રાઇસિસ આવી, એને પોતાને પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યો, એટલે અમને બેસાડીને સત્યેન્દ્ર કુમાર સાહેબની હાજરીમાં એવું કીધું કે થોડું પેમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે, બેંકમાં લોન ચાલે છે, એટલે તમે થોડું અમને સપોર્ટ કરો, એટલે અમે આમાંથી બહાર નીકળીએ, એટલે તમારું ધીમે ધીમે બધું પેમેન્ટ ચૂકવી દેશું। આ અમે એનું સારી નીતિ સમજી અને અમે એને સપોર્ટ કર્યો અને કામ અમારે પૂરું કર્યું। આજે કામ પૂરું થઈ ગયા પછી 1.5 વર્ષ જેવું થઈ ગયું। પોલીસ સ્ટેશનના ફોન નથી ઉપાડતા, નવસારી પોલીસ સ્ટેશનના ફોન નથી ઉપાડતા, આટલી મોટી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે। આજે મારી સાથે મારા લેબરો મેં બેંકમાંથી લોન લઈને કામ કરેલું છે, તો આજે એનું પ્રેશર મને, બાકી નાના કોઈ 2000 કિલોમીટરથી દૂર આવ્યું છે, કોઈ 1000 કિલોમીટરથી દૂર આવ્યું છે, કોઈ 5000 કિલોમીટર દૂર આવીને ધંધો કર્યો છે, આજે બધાના પૈસા એને આપવાની નહીં એવી મને લાગે છે ગણતરી છે। નહીં તો જો આપવા હોય તો પોલીસ સ્ટેશનમાં 10 દિવસનું એને કીધું તો 11મા દિવસે એનો ફોન આવી જાય, 15મા દિવસે ફોન આવતે। આજે મને એવી ખબર મળી છે કે આ જે પ્લાન્ટ છે, આ પ્લાન્ટ એણે લીઝ પર આપી દીધો છે। એ લીઝ પર જે પ્લાન્ટ આપ્યો છે એમાંથી 8 કરોડ રૂપિયા એની પાસે આવ્યા છે, પાક્કા ન્યૂઝ છે। અને કદાચ જો ઇગ્નોર કરે તો એના બેંક સ્ટેટમેન્ટ આપણે કઢાઈને જોઈ લેવાના। એ જો 8 કરોડ રૂપિયા આવ્યા હોય તો એમાંથી લોકોને થોડા પૈસા આપવા જોઈએ। અમે અહીંયા ટેન્ટ નાખીને બેસશું અને આત્મવિલોપન અમારે કરવું પડશે। એણે અમને મારી નાખવાની ધમકી આપી છે, પણ એની ધમકી કરતાં જો એ અમને પૈસા નહીં આપશે ને તો અમારે આત્મવિલોપન જેવું કરવું પડશે। જેનો જવાબદાર ડૉક્ટર સુનિલ દેસાઈ અને રાહુલ દેસાઈ રહેશે, કેમ કે અમારી પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નથી। કંપનીમાં સામાન પૂરો પાડનાર લોકોનું કરોડો રૂપિયાનું પેમેન્ટ બાકી છે, પરંતુ ગુડવે કેમિકલ કંપનીના માલિક મનમાની કરતા હોવાના આક્ષેપ ભોગ બનનારા લોકોએ કર્યા છે। मेरा नाम संतोष बिश्नोई है और मेरा पेमेंट बाकी है। सम्राट स्टील इंडिया नाम के हमने SS का और MS का पाइपलाइन दिया था ये कंपनी चालू करने के लिए। 1 करोड़ जितना हमने SS का पाइपलाइन दिया था उसमें से 1 करोड़ 10 लाख जितना इनका पेमेंट आ गया है, और बाकी मेरा 40 लाख रुपया 40,20,927 रुपया अभी पेंडिंग है। नहीं तो कोई जवाब दे रहा है, नहीं कोई पेमेंट दे रहा है। और मैं उसके लिए 2 बार बॉम्बे ऑफिस पे भी जाके आया, लेकिन उधर भी कोई जवाब दिया नहीं है, कुछ पेमेंट दिया नहीं है हमारा। अगले हफ्ते ऐसा करते करते अभी काफ़ी टाइम हो गया। नहीं तो सर कोई फ़ोन उठा रहा है, नहीं कोई जवाब दे रहा है। अभी आगे दे रहा है, हम तो ट्रेडिंग वाले हैं, माल लेके दिए, सप्लायर है, हम तो कुछ कोई मैन्युफैक्चरिंग बनाते तो है नहीं, हम तो लेके दिए, एकदम कम मार्जिन में काम किया है इनका प्लान। और आपने इससे पहले इस मामले को लेकर कहाँ आपने रजूआत की है? मैंने कोई रजूआत नहीं की है। मैंने खाली राहुल देसाई से कांटेक्ट किया और सुनील देसाई से कांटेक्ट किया और परचेज ऑर्डर लेके माल दिया इनको, और इनसे ही पेमेंट मांग रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम सम्राट स्टील इंडिया और इनका नाम है गुडवे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। જેમના પણ પેમેન્ટ બાકી હતા એ તમામ લોકો કંપનીના ગેટ પાસે ભેગા થયા હતા, જ્યાં કંપનીના માલિકે કંપનીના ગેટ પર તાળા મરાવી દીધા હતા, જેના પગલે ભોગ બનનારા લોકોએ મીડિયા સમક્ષ વેદના ઠાલવી છે। मैं उपेंद्रनाथ मौर्य। मैंने गुडवे केमिकल में पेंटिंग का काम, इपॉक्सी का काम और PU इपॉक्सी का काम
और स्ट्रक्चर पे पेंटिंग का काम पूरा काम किया, लगभग 1,65,00,000 का, जिसमें से मेरे को खाली 50 लाख मिला। बाकी बाद में क्या है कि ये लोग बोले कि हम पेमेंट करते हैं काम करके दो। मैंने काम पेंडिंग भी कर दिया क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था, तो मैंने काम पेंडिंग कर दिया। फिर भी इन्होंने बोला तो मैंने बैंक से गोल्ड लोन लिया, इसके बाद फ्रेंड सर्कल में मैंने पेमेंट अरेंज किया, इनका काम पूरा करके दिया। कंपनी चालू हो गई, फिर उसके बाद भी कुछ काम पेंडिंग थे, मैंने करके दिया। फिर 1 महीना का ये लोग टाइम मांगे कि हम पेमेंट आपको करते हैं। फिर 1 महीना से आज 1 साल हो गया, आज करते हैं कल करते हैं, बैंक लोन देगी तब हम दे देते हैं, ऐसा कर करके 1 साल निकाल दिए। 1 साल बाद अब हमारा फ़ोन 2 नंबर है, दोनों रिजेक्ट लिस्ट में, डॉक्टर सुनील देसाई और डॉक्टर राहुल देसाई, दोनों लोग निकाल दिए। और धमकी तो बार बार मिला, किसी को अदर बाहर भी हमको धमकी मिली है, बाहर से जो रास्ते पे रोक के मेरे को धमकी दिया है कि कंपनी के बाहर दिखना नहीं है। वो सीधा मैं तो छोटा आदमी, घर पे आ जाते हैं, घर पे आके फ्लैट पे धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। इवेंट एक आदमी मुझे एक थप्पड़ मार के भी मेरे घर पे गया है कि 2 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो मैं तेरे को कुछ भी करूँगा। આ મામલે મીડિયા સામે વાતચીત કરનાર લોકોએ કહ્યું કે તાત્કાલિક વળતર કંપની માલિક ચૂકવી આપે તેવી અમારી ફક્ત માંગ છે। આ મામલે ભોગ બનનારા લોકોએ પોલીસ મથકમાં અરજી પણ કરી છે। ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે ભોગ બનનારા લોકોને ન્યાય ક્યારે મળશે। दीपक सिंह, श्रीराम एंटरप्राइज मेरी कंपनी का नाम है। गुडवे केमिकल में मैंने काम किया था। SS, MS, स्ट्रक्चरर, पूरे लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग, रिएक्टर और AHU, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट, सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल और रनिंग प्लांट उनको दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला था पेमेंट टाइम टू टाइम दिए पहले, फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरे को बोले कि दीपक अभी काम नहीं है। मैं बोला ठीक है सर, तो फिर मैंने बाहर हो गया। तो बोले कि काम नहीं है, आदमी रहने दो। फिर मैं बोला ठीक है सर, तो पेमेंट कुछ करवा दीजिए। तो पेमेंट बोले कि नहीं अभी फंड नहीं है मेरे पास, बैंक से आने वाला है, ये है। मैं बोला ठीक है सर। उस समय बोले ठीक है। फिर दिवाली में मेरे को लास्ट अमाउंट 10 लाख रुपए दिए, बहुत सारी चीज़ें बोले। फिर उसके बाद मैंने एक दिन और आया, उसमें प्लांट में धमाका भी हुआ था। गुडवे जो अपना इनका लुब्रिकेंट यूनिट है, उसमें ओवर हीटिंग की वजह से इनका रिएक्टर का धमाका भी हुई थी, जिसके इंश्योरेंस भी कुछ पास कराए थे। तो उसमें मेरे को बुलाए थे लोग, मेरे को बोले दीपक आ जाइए, मेरे को करवा दे, मैं पेमेंट दे दूँगा। मैं बोला चलो ठीक है, अभी सर बोल रहे हैं तो करवा देता हूँ। मैंने आया करवाने के लिए, तो इनका एक प्रोडक्ट है JDDP जो बनती है, वो JDDP के अंदर मेरे को गैस लगा, मैं चक्कर खा के गिर गया उधर। फिर डॉक्टर बोलता है आज के बाद तू प्लांट में आया तो तेरे को मार डालूंगा मैं। अभी क्या मांगे आपकी? अभी यही मांग है कि हमको पेमेंट मिल जाए। અમિત સિંહ રાજપૂત સાથે પ્રશાંત પંચાલ, S24 ન્યૂઝ, સરીગામ।